મોર્નિંગ. સ્ક્રીન દેખાય છે બધાને? Yes, ma'am. ઓકે, સો કાલે આપણે જોયા હતા બ્લોકચેન, મતલબ કે IBM ક્યાં ક્યાં યુઝ કરે છે બ્લોકચેન અને એપ્લિકેશન્સ જેવું જોયા હતા ખાલી. ઓકે, ટુડે વીલ સ્ટાર્ટ વિથ વોટ ઇઝ હાઇપરલેજર. નાઉ કોઈએ સાંભળ્યું છે હાઇપરલેજર નું નામ? આઈ એમ શ્યોર બધાએ સાંભળ્યું હશે. હાઇપરલેજર ફેબ્રિક તો એટલીસ્ટ ઇટ ઇઝ વેરી પોપ્યુલર. કેન એનીવન ટેલ મી વોટ ઇઝ હાઇપરલેજર? પૂછવાનું જ નહીં ક્વેશ્ચન, કોઈ જવાબ નહીં આપે, કઈ નહીં. ચલો, હાઇપરલેજર ઇઝ નોટ અ ક્રિપ્ટોકરન્સી. ઓકે, તો ક્રિપ્ટોકરન્સી શું છે? બિટકોઇન ને આમ તેમ, ઇથર ઓર વોટ એવર, પૈસાના પછી લાઇટ કોઇન આવી રીતે બહુ બધા છે. ક્રિપ્ટોકરન્સી એટલે પૈસા નથી હાઇપરલેજર. ઓકે, પણ નથી તો બ્લોકચેન નથી તો શું છે? એટલે બ્લોકચેન આપણે વિચારતા હતા, બ્લોકચેન પણ નથી, પૈસા નથી, દેટ વી નો. કંપની પણ નથી. એટલે હાઇપરલેજર તમે વિચારો છો બ્લોકચેન ની કંપની છે, આવું પણ નથી. ઓકે, હાઇપરલેજર શું છે? ખાલી એક પ્રોડક્ટ છે. ઓકે, લિનક્સ ના એક પ્રોડક્ટ છે જે યુઝ કરીને તમે બ્લોકચેન જેવી એપ્લિકેશન પોતાનું પર્સનલ ડેવલપ કરી શકો છો. ઓકે, હવે એક્ઝેક્ટલી કેવી રીતે કહું એ તમને જાવામાં ખબર છે? સેન્ડબોક્સ બને મેમરીમાં. જેડીકે જે હોય છે that protects your Java environment from the outside RAM. ઓકે, જાવામાં એક RAM નું એક સેન્ડબોક્સ બની જાય એટલે જાવા સિક્યોર છે અગેન્સ્ટ વાયરસીસ, કેમ કે જેડીકે ઇઝ લાઈક અ વર્ચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મ, એવી રીતનું બને. સો હાઇપરલેજર ઇઝ સમથિંગ લાઈક ધેટ. ઓકે, આની અંદર તમે જેમ જાવામાં તમે નેટબીન્સ ની અંદર તમે તમારું એપ્લિકેશન્સ બનાવી શકો, જાવા એપ્લિકેશન્સ, રાઈટ? એવી રીતે હાઇપરલેજર ની અંદર તમે બ્લોકચેન એપ્લિકેશન્સ બનાવી શકો. સો ઇટ ઇઝ સમથિંગ લાઈક ધેટ. એ પૈસા પણ નથી, બ્લોકચેન પણ નથી. ઓકે, નેટબીન્સ ને તમે જાવા નહીં કહી શકતા, રાઈટ? જાવા એપ્લિકેશન્સ તમે નેટબીન્સ માં બનાવી શકો છો, બટ ઇટ ઇઝ નોટ જાવા, राइट? सो हाइपरलेजर इज लाइक दैट एंड इट इज नॉट अ कंपनी इधर. नेटबीन्स का कंपनी कौन सा है? आई डोंट नो, होगा कुछ. ओके, जावा का जो कोई भी कंपनी होगा, आई डोंट नो. तो उसी तरह से हाइपरलेजर इज नॉट अ कंपनी ऑल्सो. लिनक्स ने बनाया है इसको, और इसके कॉन्ट्रीब्यूटर्स में इंटेल, IBM, ये सारे कंपनीज आते हैं जिन्होंने इसको बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट दिया है. ओके, so Hyperledger is a project under Linux Foundation. It is an open source development project. ठीक है, open source है, आप इसको utilize कर सकते हो and you can create your own blockchain related projects. So Hyperledger Fabric IBM काफी यूज कर रहा है. Hyperledger इंडी हमने देखा था कल. इंडी कहाँ पे यूज हो रहा था? वर्ल्ड वायर जो हम कल देख रहे थे उसमें इंडी यूज हुआ है. ठीक है, Hyperledger के अलग अलग मतलब फ्रेमवर्क्स है. इंडी, फैब्रिक, फिर बरो, देयर आर सो मेनी फ्रेमवर्क्स. एक क्लासिफिकेशन मैंने रखा है, आगे हम देखेंगे उसको. So there are so many frameworks and they are being used in different areas by different companies for different requirements. Okay, fine. So open source है, open standard है, okay, free of cost है, and open governance model. Okay, standard यानी कि same rules and regulations है. open source है, आप use कर सकते हो. open source मतलब क्या? You can access it, right? And open governance मतलब कि same rules and regulations to all the Hyperledger products. Okay, so this is Hyperledger. Greenhouse, Hyperledger Greenhouse देखते हैं ना. What is this? Linux Foundation के अंडर में Hyperledger बना और उसके इतने सारे frameworks है. Okay, Burrow, Fabric, Indy, Iroha. Iroha is currently being used in for electricity grid development. Okay, and also for banking, cash development के लिए भी use हो रहा है. इंडी वर्ल्ड वायर के लिए यूज हो रहा है. ठीक है, वो ट्रेडिंग के लिए. हाइपरलेजर फैब्रिक जो है वो सबसे ज्यादा IBM के जितने भी मोस्टली प्रोडक्ट्स हैं, हमने जो कल देखे थे IBM ये कर रहा है फूड का, ये वो फूड वाला था ना, हमने कल नहीं लास्ट वीक देखा था. दैट इज आल्सो बीइंग डन इन हाइपरलेजर फैब्रिक. वैसे इतनी सारी चीजें हैं एंड दे आर बीइंग यूज्ड. ओके, नाउ सॉटूथ एक है. इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने प्रपोज की थी. Now sawtooth is what it is. इन्होंने एक नया कंसेंसस एल्गोरिथम इसमें यूज किया है. ठीक है, नाउ कंसेंसस एल्गोरिथम क्या होता है? प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, ये सब हमने सुना है. प्रूफ ऑफ वर्क हमने इम्प्लीमेंट भी किया है.
ओके, प्रूफ ऑफ वर्क में क्या कर रहे थे, कौन कितनी मेहनत कर सकता है, किसमें कितना मतलब कि कंप्यूटेशन पावर किसके पास ज्यादा है, that person will get the ownership of the new block, right? This we saw very in detail. Okay, proof of stake is किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब कि कौन मतलब स्टेक होल्डर ज्यादा है, किसके पास ज्यादा मतलब who is having more money, that person's say will be enough. Okay, उसको कुछ computations करने की जरूरत नहीं है. If he says that this is what I want, so that will happen. तो प्रूफ ऑफ स्टेक में बेनिफिट ये होता है कि हमारा प्रूफ ऑफ वर्क में जो एनर्जी रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे थे वो प्रूफ ऑफ स्टेक में वेस्ट नहीं होंगे. डिसएडवांटेज ये है कि सबको इवन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जो हाईएस्ट है उसके बोलने पे मतलब दैट पर्सन विल ओन द ब्लॉकचेन, राइट? सो दिस शुड नॉट हैपन, बट प्रूफ ऑफ स्टेक मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यूज करना है. अपॉर्चुनिटी देनी है वहां पे प्रूफ ऑफ वर्क रखो, जहां पे आपको मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की कोई जरूरत नहीं है. जैसा हमारे ईआरपी सिस्टम है उसमें वी डोंट नीड टू गिव यू राइट्स टू चेंज अटेंडेंस, राइट? उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात ही नहीं हो रही है. भले आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, इवन इफ स्टूडेंट इज वेरी रिच एंड दे हैव ऑल द रिसोर्सेज, स्टिल दे शुड नॉट बी गिवन द राइट, राइट? सो उस टाइम पे प्रूफ ऑफ स्टेक विल बी बेटर ऑप्शन. ओके, सो अभी सॉटूथ ने क्या किया है, ये तो मैं पुराना बोल रही हूँ. सॉटूथ व्हाट दे डिड इज प्रूफ ऑफ इलैप्स्ड टाइम. ओके, नाउ व्हाट इज प्रूफ ऑफ इलैप्स्ड टाइम? उसमें क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक भी नहीं और प्रूफ ऑफ वर्क भी नहीं, दोनों से बेटर है. मतलब बेटर नहीं कह सकते हम किसी भी चीज को, बट व्हाई इट इज, लेट्स सी. ओके, प्रूफ ऑफ इलैप्स्ड टाइम में क्या होता है, एक प्रूफ ऑफ इलैप्स्ड टाइम का एक एल्गोरिथम होगा, उसको यूजर डाउनलोड करके एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, जैसे हमने प्रूफ ऑफ वर्क का एल्गोरिथम इंप्लीमेंट किया था वो पब्लिकली अवेलेबल होता है. ठीक है, उसमें आपको दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करो, आपको आउटपुट लाना है. सेम बैठा उठा के आपको एग्जीक्यूट करके आउटपुट लाना है. प्रूफ ऑफ वर्क में जैसा था वैसे इलैप्स टाइम में भी आपको एग्जीक्यूट करके एक की जनरेट होती है. मतलब जैसे उसमें हैश वैल्यू जनरेट होती थी, इसमें की या डिजिटल सिग्नेचर टाइप मान लो उस की को, वो जनरेट होता है. फिर वो होने के बाद उसको आप, वो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है कि 0 0 0 से स्टार्ट, जैसे हमने 5 बार 0 का रखा था, 3 बार 1 का रखा था, ये सब रखा था ना, वैसा कोई पैटर्न की जरूरत नहीं है. जस्ट जनरेट योर ओन सिग्नेचर, मतलब तुम्हारे आइडेंटिटी पे से एक सिग्नेचर बनेगा विच विल प्रूव दैट यू आर अ लेजिटिमेट यूजर. दैट्स इट. खुद का प्रूफ करने के लिए कि यस आई एम अ लेजिटिमेट यूजर, मैं इंट्रूडर नहीं हूँ, ये प्रूफ करने के लिए आपकी एक आइडेंटिटी जनरेट करने के लिए की जनरेट होगा. फिर वो की आप नेटवर्क सर्वर या जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स है जिनको भी राइट्स दी है वेरीफाई करने की, उनके पास जाएगा, वो वेरीफाई करेंगे वेदर यू आर लेजिटिमेट और नॉट. अगर मतलब कि आपका हैश वैल्यू, वो अपने हैश वैल्यू जो ऑलरेडी स्टोर्ड है लेजिटिमेट यूजर में, दोनों में कंपेयर करेंगे, अगर दोनों सेम है दैट मीन्स कि यू आर द राइट वन. मतलब पासवर्ड जैसे हम डालते हैं, पासवर्ड का हैश वैल्यू कंपेयर होता है विद द हैश ऑफ द पासवर्ड व्हिच इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द सर्वर, राइट? तो दोनों अगर मैच होता है तो हमको लॉगिन मिलता है. तो समथिंग लाइक दैट, उस तरह से होगा. फिर उसके बाद वो लोग एक रैंडम नंबर आपको देंगे. ओके, अभी ये आपको ट्रस्ट रखना है कि जो रैंडम नंबर उन्होंने दिया है दैट इज एक्चुअली रैंडम एंड उन्होंने कोई पायरेसी नहीं की है उसमें. ओके, तो वो रैंडम, ये ट्रस्ट बेस्ड है, इस पे कुछ सोल्यूशन नहीं है अभी. तो आपको जो ट्रस्ट बेसिस पे आपको एक रैंडम नंबर मिलेगा, वो टाइम होगा. मतलब जैसे मेरे पास मैं आई एम द पर्सन हु इज वेरीफाइंग एंड 5 ऑफ यू, विधि, प्राची, मनन, जैन, केनिल, ये 5 नाम मुझे पहले दिख रहे हैं, सो आई एम कॉलिंग द नेम्स. तो ये 5 लोगों ने मुझे अपनी आइडेंटिटी का सिग्नेचर भेजा. ओके, नाउ आई नो कि ओके दे आर माय स्टूडेंट्स, तो मैंने उन सबको एक रैंडम नंबर दे दिया. विधि को 9 दिया, प्राची को 26, मनन को 38, जय को 59, केनिल को 62. अभी इतने सेकंड्स तक आपको वेट करने हैं. ठीक है, अभी मतलब वेटिंग मतलब क्या, प्रूफ ऑफ इलैप्स्ड टाइम, मतलब कितना टाइम पास हो गया. ओके, तो उतनी देर तक आपको वेट करना है. मीन्स व्हाट विल हैपन हियर, विधि विल वेट फॉर 9 seconds, प्राची विल वेट फॉर 26 seconds, मनन विल वेट फॉर 38 seconds एंड सो ऑन. ठीक है, तो इस तरह से ये लोग वेट कर रहे हैं. तो जो सबसे जिसका मतलब सबसे पहले वेटिंग टाइम खत्म हो जाता है उसकी ब्लॉक एक्सेप्ट हो जाएगी. मतलब उसका ब्लॉक विल बी कंसीडर्ड एज द न्यू ब्लॉक एंड दैट पर्सन विल बी ओनर ऑफ दैट न्यू ब्लॉक, और उसको माइनिंग का जो भी रेन्यूमरेशन होता है वो मिलेगा. मतलब इस पे क्या हुआ, इस पे आपको रिसोर्सेस की जरूरत नहीं है.
प्रूफ ऑफ वर्क की तरह। इसमें आपको मतलब ओळखान की जरूरत नहीं है प्रूफ ऑफ स्टेक की तरह। इसमें क्या चाहिए, आपको लक चाहिए कि आपको जो रैंडम नंबर मिल रहा है वो छोटा नंबर हो। ओके, मतलब रैंडम नंबर में किसी को डजंट मैटर वेदर ही इज केपेबल और नॉट, किसी को दिस इज कंप्लीटली लक बेस्ड प्रूफ कंसेंसस एल्गोरिथम। ओके, इसमें अगर आपको छोटा नंबर मिला, लाइक विधि गॉट 9, सो शी विल कंप्लीट 9 सेकंड अर्लियर देन केनिल जिसका 62 है, राइट? उसको ज्यादा टाइम लगेगा, विधि को कम टाइम लगेगा, है ना? तो विधि विल विन दिस राउंड एंड शी विल गेट द ओनरशिप ऑफ द न्यू ब्लॉक। ओके, और उसका ब्लॉक ऐड कर देंगे ब्लॉकचेन में। समझ आया सबको प्रूफ ऑफ elapsed टाइम? Ma'am, if within the time she doesn't finish the work, then the priority changes or remains the same? No, it's not about priority. ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेयर मत करो। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे टाइम के बाद एक एक प्रायोरिटी इंक्रीज होती थी, मतलब पहली प्रायोरिटी 10 वाले की है, हाँ। दूसरे वाले की प्रायोरिटी 2 है। तो ऐसा नहीं है कि 10 वाला आता रहेगा, इसलिए हमने ऐसा किया था कि दूसरे वाले का टाइम लैप्स की प्रायोरिटी इंक्रीज होती थी, है ना? दिस इज नॉट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसा नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे कोई प्रायोरिटी जैसा कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे हर एक ब्लॉक ऐड करने के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी। प्रायोरिटी इज नॉट अ कॉन्सेप्ट हियर। तुमने अपनी आइडेंटिटी दी, मतलब तुमने जो सिग्नेचर जनरेट किया दैट इज योर एनरोलमेंट नंबर, ऐसा मानो, और किसी और ने, मनन ने सिग्नेचर जनरेट किया, वो उसका एनरोलमेंट नंबर है। तो मुझे एनरोलमेंट नंबर देख के पता चल जाएगा कि आप लोग इधर के स्टूडेंट हो, है ना? तो आप लोग लेजिटिमेट यूजर हो गए। उसके बाद एक सूडो रैंडम जनरेटर होगा। There are many pseudo random generators available online. Okay, किसी भी बेसिस पे वो रैंडम नंबर्स जनरेट करते हैं बिटवीन अ रेंज। ओके, पाइथन में भी हमारा फंक्शन है इनबिल्ट रैंडम का, ठीक है ना? तो उसमें कोई भी रैंडम नंबर एक रेंज के अंदर जनरेट होता है। तो अभी रेंज में 0 से 100 के बीच में मैंने रैंडम नंबर जनरेट करने को दे दिया। फिर मैंने देख ली कि वो रैंडम नंबर क्या है, क्योंकि मैंने देख लिया तो मैं जिसको जानती हूँ उसको मैं कम वाला दे दूंगी ना। आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल गेट इट ऑटोमेटिकली। मतलब आपको एक रैंडम नंबर और आपका मैंने वेरिफिकेशन जैसे ही ओके कर दिया, वैसे ही एक रैंडम नंबर जनरेट होके आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब वो रैंडम नंबर अगर छोटा नंबर आपको मिला, इफ यू आर लकी get a smaller number, if you are unlucky then you will get a larger number। तो स्मॉलर नंबर जो मुझे मिला, मानो मुझे मिला 36, ठीक है? अभी 36 का सेकेंड्स, मतलब 36 सेकेंड्स में काउंट करते हैं, चलो 35, 34 ऐसे कम होते होते जैसे ही मेरा 0 पे आएगा, मेरे पहले अगर किसी और का 0 नहीं आया, मतलब बाकी सबका नंबर 36 से ज्यादा है, तो क्या मैं आई एम द विनर एंड माई ब्लॉक विल गेट सिलेक्टेड। अभी वापस से नेक्स्ट ब्लॉक के लिए वापस से मुझे सिग्नेचर देना पड़ेगा, वापस से रैंडमली कोई रैंडम नंबर जनरेट होगा, वो वापस से मुझे मिलेगा एंड अगेन टाइमर विल स्टार्ट। समझ आया? इसमें प्रायोरिटी का कुछ लिंक नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम लोग पढ़ते थे वो ये मेमोरी मैनेजमेंट में वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? उसके साथ कनेक्ट आप नहीं कर सकते इसमें। दिस इज जस्ट लक बेसिस पे। पता चल रहा है आपको? यस मैम। ओके, ठीक है। बाकी सबको समझ में आ गया ये? किसी को कोई डाउट है? आप कुछ बोल नहीं रहे तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग बहुत सेटिस्फाइड हो और आपको 100% समझ में आ गया है, ठीक है ना? सो आई विल स्टार्ट अज्यूमिंग इफ यू डोंट आस्क डाउट्स। फाइन, तो ये होता है प्रूफ ऑफ elapsed टाइम। इसके आगे मैंने स्लाइड भी रखी है, तो मैं पीपीटी में आपको पीपीटी जब अपलोड करूंगी बिफोर एग्जाम, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस थिंग्स, प्रूफ ऑफ वर्क भी, प्रूफ ऑफ elapsed टाइम भी, ठीक है? सो हाइपरलेजर में डिफरेंट हाइपरलेजर्स आर डूइंग डिफरेंट टास्क। ये प्रूफ ऑफ elapsed टाइम जो है वो सॉटूथ का है, स्पेसिफिकली फॉर सॉटूथ। Okay, yeah, so Bitcoin is not using this yet, and Bitcoin कर भी नहीं सकता यूज, क्योंकि उसमें लक बेसिस पे हम नहीं ले सकते, बिकॉज इट इज अ पब्लिक ब्लॉकचेन। अभी पब्लिक ब्लॉकचेन का डिसएडवांटेज क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है? पहले हम ये देखते हैं हाइपरलेजर यूज कौन करता है। इट इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय डेवलपर्स फॉर इंडस्ट्रीज। सी, दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन। हाइपरलेजर is a software which everyone can use to create one's own
पर्सनलाइज्ड ब्लॉकचेन सर्विस, ठीक है, इट इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ प्रोडक्ट टाइप, प्रोजेक्ट टाइप, ओके। इसमें आप जैसे नेटबीन्स में आप जावा प्रोजेक्ट बना सकते हो, एनाकोंडा में आप पाइथन प्रोजेक्ट बनाते हो, उस तरह से हाइपरलेजर में आप ब्लॉकचेन बना सकते हो, ठीक है, ओके। नाउ ट्रेडिशनल ट्रेडिंग, चलो ये एक एग्जांपल है, ये हम देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक दिस इज अ नॉर्मल ट्रेडिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में ये इंटर कंट्री ट्रेडिंग हो रही है, दिस एलिस एंड बॉब के बीच में अ ट्रेडिंग इज गोइंग ऑन। बॉब ने कुछ ऑर्डर किया फ्रॉम एलिस एंड एलिस वेरीफाई करके, लॉजिस्टिक वेरिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिक, पेमेंट वेरिफिकेशन करके बॉब तक वो चीज पहुंचेगा, ठीक है। शी इज द कंपनी पर्सन एंड ही इज द यूजर, इसको इससे ऑर्डर करना था, ओके। तो ये ट्रेडिशनल ट्रेडिंग में ऐसा होता है, फाइन। अब अगर ब्लॉकचेन की बात करें, पब्लिक ब्लॉकचेन पे, तो क्या होता है पब्लिक ब्लॉकचेन में, हर एक चीज जो हो रही है वो चीज सबको पता चलता है ना। वी नो दैट एवरी ट्रांजैक्शन दैट इज हैपनिंग विल बी नोन टू एवरीबॉडी, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिस से बॉब ने कुछ मांगा, कोई चीज ऑर्डर की, तो एलिस इज बॉब को कोई डिस्काउंट में कोई चीज दे रही है, ठीक है, या मे बी शी नोज हर फ्रॉम बिफोर एंड शी इज गिविंग हिम समथिंग फॉर फ्री, या एनी गिफ्ट और लाइक दैट। तो अभी वही चीज वो दूसरों को जब बेच रही है तो शी इज सेलिंग इट एट अ हायर प्राइस, क्योंकि बॉब को देने के बाद उसका जो लॉस हुआ वो उसे ओवरकम करना है फ्रॉम समथिंग एल्स, राइट। इफ यू आर गिविंग स्पेशल समथिंग टू, मतलब कि जैसे आपने कोई चॉकलेट देना है आपको, वो चॉकलेट्स का प्राइस है 100 रुपीज, पर आपने बॉब को अगर फ्री में दे दी तो बाकी 5 लोगों को जो आप बेचोगे तो वो 120 रुपए पे आप बेचोगे, क्योंकि वो बॉब का 100 रुपए आपको वसूल करना है कहीं और से, राइट। तो दीज थिंग्स, इफ समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, तो ये इन दोनों की तो स्पेशल डील है, ये हमको सबको नहीं बताना है। सबको बताएंगे तो सबको नोटिस होगा कि 100 रुपीज का उसको फ्री में दिया और हमसे वसूल कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। बट बिजनेस में ऐसा होता ही है, ओके, दिस इज अ जनरल थिंग। बट ये चीज अगर हम बता देंगे तो फिर बिजनेस नहीं चलेगा। दीज थिंग्स हैपन ऑल द टाइम, बट वी शुड नॉट टेल इट टू अदर पीपल, राइट। तो इसमें क्या होगा, पब्लिक ब्लॉकचेन पे अगर इस तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सबको नोटिफिकेशन जाएगा कि बॉब पेड 0 रुपीज टू एलिस एंड एलिस ट्रांसफर्ड द चॉकलेट टू बॉब, ओके। तो अभी बाकियों को नोटिस होगा कि ऐसे कैसे चलेगा, राइट। तो इसलिए ये पब्लिक ब्लॉकचेन का एक डिसएडवांटेज है कि हर चीज सबको क्यों बताना है, नहीं बताना है ना। मतलब आप प्राइवेसी, भले चलो एलिस है, बॉब है, वो चीज आप भले हाइड कर रहे हो, पर इसकी जगह पे 1 2 3 4 है, इसकी जगह पे 3 4 5 6 है। मतलब 1 2 3 4 सेंट चॉकलेट टू 3 4 5 6 एंड 3 4 5 6 पेड 0 रुपीज टू 1 2 3 4। अभी किसी और को 1 2 3 4 से अगर चॉकलेट खरीदने हैं तो वो बोलेंगे मैं क्यों पे करूं, है ना। ऐसी इशू जब आएगी, इज माय वॉइस क्लियर और इज इट स्टिल ब्रेकिंग? सुनाई? मैम ब्रेकिंग। Sometime breaking. ओके, चलो अभी लेट मी से दिस अगेन। एलिस एंड बॉब के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रेडिशनल हमको पता है, इसने मांगा हमने भेज दिया, मतलब जैसे फ्लिपकार्ट पे हम ऑर्डर करते हैं उस तरह से, ठीक है। ब्लॉकचेन पे अगर ट्रेडिंग हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, ये इससे मांगा, ठीक है, बॉब ने। अभी ये एलिस बॉब की फ्रेंड है, तो इसने बॉब को फ्री में चॉकलेट दे दिया कि चल मेरी कंपनी है पर तू मेरा फ्रेंड है इसलिए ले चल एक चॉकलेट तू फ्री में खा ले, ठीक है। अभी ब्लॉकचेन है तो क्या होगा, ब्लॉकचेन में सबके लेजर में क्या नोटिफिकेशन जाएगा, एलिस का नाम नहीं जाएगा क्योंकि प्राइवेसी प्रोटेक्ट होती है, बट कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है ब्लॉकचेन में, राइट। प्राइवेसी तो है, एलिस का नाम नहीं जाएगा, इसकी जगह पे कोई आईडी जाएगा कि 1 2 3 4 सेंट 1 चॉकलेट टू 3 4 5 6, ठीक है। बॉब की आईडी 3 4 5 6 है, मतलब उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी हाइड हो रही है, उसकी जगह पे कोई नंबर आ रहा है, कोई हैश वैल्यू या कुछ भी आ रहा है। बट सेंड 1 चॉकलेट टू बॉब, वो सेंड 1 चॉकलेट कॉन्फिडेंशियल नहीं है, वो पूरा मैसेज नॉर्मल ही जा रहा है, उसकी जगह पे साइफर टेक्स्ट जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है, फिर बॉब पेड 0 रुपीज, मतलब कि 3 4 5 6 पेड 0 रुपीज टू 1 2 3 4, वो वाली चीज भी पब्लिकली जा रही है ना। 0 रुपीज भी सबको दिखेगा, मतलब ब्लॉकचेन का तो हमने अभी तक यही पढ़ा ना कि ट्रांसपेरेंसी है, सबको दिखेगा सब कुछ, है ना। नाउ जो कोई और कंपनी है, अभी इसने इसको फ्री में बेचा तो वो पैसे वो खुद के लॉस पे तो नहीं करेगी ना।
अगर आपका बिजनेस है, आपके डायमंड्स का बिजनेस है, आपने अपने फ्रेंड को एक डायमंड रिंग फ्री में दे दी, तो आपको वो मानो 60,000 की डायमंड रिंग है, तो वो आपको 60,000 वसूल तो करनी पड़ेगी ना, आप खुद का लॉस तो कराओगे नहीं, तो आप वो 60,000 कहाँ से वसूल करोगे? दूसरों पे से। बाकी आपके 60 कस्टमर है अगर, तो उसमें 1,000 ऐड कर दोगे, सबको 61,000 पे बेचोगे, तो आपका मतलब बैलेंस रहेगा ना। अगर आपने एक को फ्री में दिया, यू कैन नॉट मतलब टेक द लॉस, राइट? तो 100 रुपए की चॉकलेट इसको फ्री में दी, तो बाकी जो 5 कस्टमर्स है उनको मैं 120 पे चॉकलेट बेचूंगी, तो मेरा वो 100 रुपए वसूल होगा, राइट? तो ये सिचुएशन में क्या होगा कि सबको दिखेगा कि शी sent the chocolate and he paid 120 rupees but this person paid 0 rupees. तो सब मतलब कि बिजनेस में वी डू दीज थिंग्स, बट ये चीज हमको सबको नहीं बताना होता है, राइट? सो पब्लिक ब्लॉकचेन में जब आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो, जो कि सारे बिजनेस ऐसे ही होते हैं, कोई भी बिजनेस नहीं है जो फुल्ली ईमानदारी से होता है, राइट? तो एवरी बिजनेस इज लाइक दिस। तो उस टाइम पे पब्लिक ब्लॉकचेन इज नॉट सूटेबल, है ना? तो वो टाइम पे हमारा आता है हाइपरलेजर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। ओके, सो સંભળાય છે ને બધાને? ખબર પડી ને આટલું જે કીધી? યસ મેડમ, આપણે બધાને બતાવીને શું કામ છે આમાં? એટલે જે કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે, તમે કીધું બ્લોકચેનમાં આપણે બીજા બધાને પણ ટ્રાન્ઝેક્શન દેખાય, એનાથી બેનિફિટ શું થાય? હા, નહીં થતું ને, એટલે બિઝનેસમાં આ બેનિફિટ નથી થતું, કેમ કે બધાને ખબર પડી જાય છે આપણે ટ્રાન્ઝેક્શનમાં કોઈને ફ્રીમાં આપ્યા, કોઈને વધારે પૈસાથી આપ્યા, તો એ एक्चुअली ડિસએડવાન્ટેજ છે બ્લોકચેનની। આ બેનિફિट ક્યારે થશે કે જ્યારે આપણું કોઈ मतलब कि ऐसा ट्रांजैक्शन है कि इसने पैसे दिए कि नहीं दिए, वो चीज हमको सबको दिखाना है। तो ये कि आपका ब्लॉकचेन सिचुएशनल है, आपको कभी बेनिफिट कौन से सिचुएशन में बेनिफिट, कौन से सिचुएशन में, जैसे ईआरपी का सिस्टम ले लो, उसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगर कोई फैकल्टी ने पुराने किसी स्टूडेंट का अटेंडेंस चेंज किया, तो सबको पता चल जाएगा कि ये अटेंडेंस में छेड़छाड़ हुई है, राइट? तो दो सिचुएशंस आर गुड। तो इस तरह की कोई सिचुएशन है तो उस टाइम पे इट इज गुड। बट जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में भी ब्लॉकचेन गुड है, क्योंकि आपके कस्टमर्स को एक्चुअली पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हो। बट इफ यू आर द बिजनेस पर्सन, उस टाइम पे अगर आपने ऐसा कुछ किया है झोल, जो मैंने अभी बात की, तो वो सबको पता चलेगा। अभी हमको सबको नहीं बताना है, तो इसलिए ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन की बात कर रही हूँ मैं, पब्लिक ब्लॉकचेन। ओके, जैसे बिटकॉइन की बात हुई, बिटकॉइन कोई किसी को फ्री में नहीं दे सकता, है ना? ये तो आपकी कंपनी है, आपने डायमंड रिंग दे दी फ्री में, दैट इज ओके। बट बिटकॉइन में आप ऐसा नहीं कर सकते। बिटकॉइन में यू हैव टू परचेज, यू हैव टू सेल, ठीक है? तो बिटकॉइन में, इसमें पब्लिक ब्लॉकचेन में बेनिफिट ही बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि सबको पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन हुआ था, ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, तो कोई भी रॉन्ग क्लेम नहीं कर सकता। बट मैं आपके लेवल पे बात करूं, मतलब हमारे लेवल पे हम बिटकॉइन लेवल का कुछ नहीं कर रहे। हम सूरत बेस्ड एक कंपनी है, उसमें हम लोग चॉकलेट्स बना रहे हैं, चॉकलेट्स बेच रहे हैं। एक चॉकलेट का मुनाफा हम दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करके वसूल कर रहे हैं, ठीक है? सो इन दैट सिचुएशन पब्लिक ब्लॉकचेन इज यूजलेस। ओके, तो इसीलिए ये डिसएडवांटेज है ब्लॉकचेन का। उस टाइम पे आया हमारा, अभी आया हमारा हाइपरलेजर। हाइपरलेजर का बेनिफिट क्या है मैडम? हाँ बोलो। અત્યારે અમેઝોન ને ફ્લિપકાર્ટ ને બધું છે, બધામાં બ્લોકચેન નો યુઝ નથી થતો ને? ના, નથી થતું। કોઈ જગ્યાએ એ ટ્રેડિશનલ, આપણે જે આ ટ્રેડિશનલ વાળું જોતા હતા, એટલે ધીસ વન ટ્રેડિશનલ ટ્રેડિંગ એ ફ્લિપકાર્ટ વાળું છે। અહીંયાથી મંગાયા, વેરિફિકેશન બધું થયું, પેમેન્ટ બધું થયું અને પહોંચી ગયું, that is traditional। બ્લોકચેન યુઝ નથી થતા, મોસ્ટલી 90% જગ્યાએ બ્લોકચેન નથી। એટલે આ બધુંમાં તો છે જ નહીં, બિટકોઇન ને આ બધામાં જ છે બ્લોકચેન। અને કોઈક પ્રાઇવેટ બ્લોકચેન છે, એ પ્રાઇવેટ બ્લોકચેન ની વાત અત્યારે હું કરું છું। ઓકે, તો આ પબ્લિક બ્લોકચેન નું જ્યારે ડિસએડવાન્ટેજ મને દેખાયું, એના પછી આવ્યો હાઇપરલેજર। ના હાઇપરલેજર માં બેનિફિટ શું છે કે this becomes a private, this is specifically for those kind of businesses जिसमें हमको सबको नहीं बताना है। ओके, बिटकॉइन में हमको सबको बताना है, बट इन सब चीजों में हमको सबको नहीं बताना है। मैंने किसको चॉकलेट दिए और बाकी किसके पास से वसूल किए, वो चीज मुझे सबको नहीं बताना है। एट दैट टाइम इट इज हाइपरलेजर। इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन वाला, दूसरी कंपनीज, दूसरे लोग जिन्होंने इससे ऑर्डर किया है, या पेमेंट कंपनी या व्हाटएवर, उन लोगों को किसी को भी पता नहीं चलेगा कि एलिस और बॉब के बीच में क्या डील हुई है, ठीक है? सो दिस इज बेनिफिट ऑफ हाइपरलेजर कि सबको नोटिफिकेशन नहीं भेजना है,
आपके साथ रिलेटेड जो है उसी को नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाइपरलेजर, ऐसा होता है। समझ में आया सबको? યસ Amazon આ બધી વસ્તુમાં હાઇપરલેજર કે બ્લોકચેન કઈ બી યુઝ નથી થતું અત્યારે। બ્લોકચેન एक्चुअली ઇન્ડિયામાં તો થતું જ નહીં, કેમ કે ઇન્ડિયામાં લીગલ જ નથી અત્યાર સુધી તો મેં સાંભળ્યું નહીં કે ક્યાંય થયું છે। યા બટ IBM is doing a lot of thing outside India. IBM is not an Indian company, but still ઇન્ડિયામાં છે, પણ ઇન્ડિયામાં નથી કરતો, પણ બહાર કરે છે અને ઇન્ડિયામાં લાવવાની ટ્રાય કરે છે। ઓકે, કે ઇન્ડિયામાં થઈ જાય। ઇલેક્ટ્રિસિટી ગ્રીડ વાળું મને બહુ ગમ્યું હતું જે જર્મનીમાં કરે છે। that was one of my favorite things. લાઇટ જવાની પ્રોબ્લેમ સોલ્વ, ઓકે। मतलब even distribution of electricity થશે અને battery charge થઈને मतलब proper distribution, that was my favorite. And food wala is also good, you can track your food properly using blockchain. આ બધી વસ્તુ છે ને ફૂડ વાળું જે છે, in that case we need public blockchain, क्योंकि उसमें सबको पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन हम मतलब कि फूड हमारा कहाँ से आ रहा है, उसमें हमें हाइड नहीं करना है, राइट। बट जैसे मेरा पर्सनल बिजनेस है, उसमें मैं किसी को स्पेशल फेवर्स दे रही हूँ, मैं किसी को गिफ्ट्स दे रही हूँ, तो वो मुझे सबको नहीं बताना है। सॉरी। सो दिस डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि आपको कहाँ पे कितना इंफॉर्मेशन शेयर करना है, उसके बेसिस पे आप पब्लिक ब्लॉकचेन करो या हाइपरलेजर यूज करके अपना प्राइवेट खुद का ब्लॉकचेन बना लो। ओके, समझ में आया सबको? समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. ओके, आई एम डन फॉर टुडे। आप लोग अटेंडेंस लिख दो चैट में। चलो, यू कैन लीव अटेंडेंस लिख के। I think Hyperledger is having more disadvantage than this traditional what? Traditional blockchain, मतलब traditional business की blockchain. blockchain. Why is that? Blockchain. Why is that reason? Ma'am, because in blockchain the main is that every ledger should know the information. Yes. Right? Ma'am, and in Hyperledger only the two. Means in Hyperledger only the fraud cases, if we want, means like this, the transaction we were saying about chocolate, that type of transaction can be only done with an Hyperledger. If all बोलो legal transaction should be done with that traditional method only, na? अच्छा, लीगल ट्रांजैक्शन की भी मैं बात कर लेती हूँ। चलो, जैसे somebody is having some legal court cases, okay, तो चलो if we are using a cyber case solve हो रहे हैं अभी, चलो मैरिजेस एंड डिवोर्सेस की बात करते हैं, साइबर कोर्ट्स में होते हैं अभी, होने लग जाए अगर इन फ्यूचर, तो उस टाइम पे क्या अगर किसी को डिवोर्स हो रहा है, देन इज इट गुड कि सबको नोटिफिकेशन जाए कि दिस पर्सन गॉट डिवोर्स्ड और दिस पर्सन गॉट मैरिड? नहीं। No. या एग्जैक्टली। तो उन सब सिचुएशंस में आई थिंक हाइपरलेजर वुड बी बेटर, क्योंकि हमारी जो पर्सनल चीजें हैं वो हमारा पर्सनल रहना चाहिए, उससे दूसरों को कोई मतलब ही नहीं है। जिस चीज में दूसरों को मतलब है, जैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या मतलब जैसे हम लोग ने, जैसे मैंने पहले दिन एग्जांपल दिया था पार्टी वाला, उसमें हम लोग पार्टी में गए, एक ने पे किया, बाकी सबको उसको पे करने हैं। अब उसमें सबको पता होना चाहिए कि किसने पे किया है, ताकि बाद में सामने से आके कोई ना बोले कि मैंने तो पैसे दे दिए थे, है ना, राइट। उस सिचुएशन में होना चाहिए कि एवरीबडी शुड नो, ताकि फॉल्स क्लेम्स ना हो। पर इन केसेस व्हिच आर पर्सनल, आई एम गिविंग गिफ्ट टू समवन, somebody is getting married, somebody is getting divorced, वो चीजें प्राइवेट रखने की ना, तो कोर्ट केसेस, लीगल केसेस शुड बी ऑन हाइपरलेजर ओनली, राइट। कुछ चीज जिनसे कंसर्न है, जैसे कोई चीज है जिसमें मतलब जैसे 7th पे कमीशन, सैलरीज, या जैसे गवर्नमेंट ने कौन से रूल्स निकाले, या टैक्सेस, किस तरह से टैक्स के न्यू रूल्स क्या है, वो सब पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि उसमें सबको पड़ी है उसकी, राइट। सैलरीज सबकी Yes.
या लॉकडाउन की वजह से मानो इतने सारे लोगों की जॉब गई, इतने सारे कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना से कैसे बचना है, दोस चीजें शुड बी पब्लिक। बट जो पर्सनल लाइफ रिलेटेड केसेस है, दोस थिंग्स शुड बी प्राइवेट। तो मतलब ये चीज क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट पे है कि आप, वैसे हम देखें तो हाथ से पैसे देना सबसे बेस्ट है ना। मैंने मतलब हाँ हो तो मैं मेरे को प्राची को पैसे देने हैं, हम क्लास में ही है तो मैं हाथ से ही दूंगी ना, मैं तो ब्लॉकचेन में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके थोड़ी पैसे दूंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिक्वायरमेंट कि आपको क्या चाहिए एट द मोमेंट, उस टाइम पे बेनिफिट। इसीलिए हम कभी नहीं कहते विच इज बेटर, दिस इज बेटर और दिस इज वर्स। जैसे पब्लिक की प्राइवेट की के टाइम पे मैंने बोला था कि सिमेट्रिक एसिमेट्रिक में कौन सा बेटर है, वैसा कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ सिचुएशनल होता है। कोई किसी सिचुएशन में बेटर है तो कोई किसी और सिचुएशन में, ठीक है। सो दिस इज द मेन थिंग। ओके मैम, यस मैम। हाँ ओके। तो अभी अटेंडेंस हो गई आप लोगों की, लिख दिया है तो यू कैन लीव। कोई और डाउट है देन आल्सो यू कैन आस्क, ओके, आई एम हियर ओनली।